Nothing. यहाँ पे ब्लैक भी नहीं है, वहाँ पे ब्लैक आता है। ब्लैक आता है। यहाँ पे दोनों या तो उसको छिलका काट देते हैं यहाँ पे छिलका मिला के तो भी देंगे। ये वाला। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक है, बढ़िया। होस्ट कर हो गए सर? वो फोटोग्राफ कहाँ है आपकी? और फोटोग्राफ नहीं आ रही मेरी? या दिख रही है। क्या हाल है सर आपके? सॉरी, वो अभी ना वो जरा मल्टीपल अपना वो आ गए हैं, तो अभी सबकी फोटोग्राफ नहीं आए। नमस्कार बत्रा जी। नमस्कार जी। जी सर, गुड आफ्टरनून बत्रा सर। People are joining in. Joining in, sir. तरुण जी, क्या हाल है सर आपके? बढ़िया सर। गुड आफ्टरनून बत्रा सर। आफ्टरनून तरुण जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। आजकल तरुण जी छाए हुए हैं। मजाक उड़ा रहे are doing really well, and my wishes, my blessings, everything is with you. I'm not joking. I really like the way you telling me. I am one of your fan. That is too much for me. नहीं बेटा, मैं बहुत लोगों का फैन हूँ. You are one of them. उनका भी मैं फैन हूँ. इतनी क्लैरिटी से आप बोलते हो ना, that is really amazing. Thank you sir. नमस्कार जैन साहब। सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार तरुण जी, ललित जी, सुनील जी, अंकित जी। वो खर्चा जो 2 लाख से ऊपर हुआ। सब बत्रा जी भी बात बोल गए कि 2 लाख लेफ्ट जेब से निकले और 20,000 राइट जेब में आ गए। यही हुआ है ना सर? ठीक है। I'm just muting you all and unmute oneself when somebody has a question or want to speak. So I'm starting them. So friends, it's a proud privilege to welcome you all to the monthly G19 bar meeting. And at the outset, on the day when it is the Buddha Purnima, it is a blessing on me in personal and to all of us in general, that the teaching of Lord Buddha has given us some path to travel to the world as such and to get something out of it which is not materialistic in nature. Yet we are into the world of the materialism and we more concentrate on the materialistic world. But however, many of us, not more, many of us, all of us, I mean, in a small way or the larger way, we also move our soul towards to the ultimate enlightenment, maybe sooner or later. On this day, I am also feeling proud. It's privileged when the speaker like C. Vejan ji, C. Ashok Batra ji, C. Dr. Gaurav Gupta ji, Satish Agarwal ji, and Tarun ji, they made my life simple equally. सहज भाव से इनकी जो है मुझे अनुमति मिल जाती है कि हाँ चलो सेमिनार करेंगे, और इनके जो ज्ञान प्राप्त होता है वो उसका कोई देयर इज नो वैल्यू टू दैट. आई मीन इट इज इनवैल्यूएबल. Thanks to my esteemed speaker and thanks to my friends who had joined the meeting in large number. And I hope in the future time also, the blessing of my speaker and the seniors will always be showered on me. Always in so, and I expect this blessing to be with me all the time. Having said so, friends, as you all must have read through, few of the
good things and few of the bad things. Not so good, I said, not bad, it's not so good. Good thing is that definitely the collection to the GST may be closing of the March month, but touching all-time high to 1.87. I was sitting on first at around the noon time with the GST department with some senior officer. जी आपकी आवाज चली गई. आवाज तो नहीं जानी चाहिए. नहीं, am I not audible? आ रही है. आ रही है सर. हो सकता है बत्रा जी के यहाँ लोकल प्रॉब्लम हो कोई. आ रही है सर हमारे यहाँ तो नहीं डिस्कनेक्ट हुई है. Thank you, sir. Bata sir, am I audible? हाँ, yes. Thank you, sir. So, friends, I was sitting with one of the senior officer in one of the GST department, और तब तक ये data आया नहीं था, and he said कि this time it will be all-time high, and he was quite jubilant on that point. And when the data came, definitely it was quite a good data, and definitely it's a matter of jubilation for all of us. The collection of 1.87 lakh crore approximate was the collection for the month of March, and it is definitely. And they said another thing, that we are looking at coming to closer to the 2 lakh crore figure in the time to come. Means thereby the economy, in whatever way we say, whatever the reason could be, maybe because of the government, I don't know whether it is a ease of business concern or, but it is the overall government policy which has brought this level to the collection of the GST, and that ultimately will be defined in the terms of the collection in the direct taxes also. But the not so good point is again the 148 is not settling down. A lot of things are happening. The direct tax speakers will take on this particular points. Will definitely come on to this point. But one thing is that 153 is settled now by Supreme Court. They had done a good. They had gave a good judgment, which definitely at a level has settled many of the things. Having said so, but I'll say a few more things in the time to come, but without going further, I request, as usual, the Taruns to start with, and then but my one request to my friends, all of you, because many times GST के अंदर क्या होता है कि काउंसिल मीटिंग हो तो बहुत सारी चीजें हमारे पास कहने के लिए सुनने के लिए होती हैं, या अभी क्योंकि केस कुछ आ जाए, जजमेंट्स आ जाए, तो उसमें कुछ कहने के लिए सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. वैसे तो जो एमिनेंट स्पीकर्स होते हैं उनके लिए हमेशा ही बहुत कुछ कहने के लिए होता है, वो अपनी तरफ से जो भी कहेंगे हमारे लिए आशीर्वाद होगा. बट ओवरऑल आई रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, बिकॉज वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी आर इनटू प्रैक्टिस, वी अंडरस्टैंड एंड वी कम टू नो द लोकल क्लाइंट्स प्रॉब्लम आल्सो. और जो एक क्लाइंट की प्रॉब्लम है वो अन्य बहुतों की भी हो सकती हैं. तो विल रिक्वेस्ट इफ यू कैन पुट योर क्वेरी फर्स्ट बिफोर द एमिनेंट स्पीकर्स, सो आई सपोज इट विल बी, आई मीन ऑल विल बी बेनिफिटेड बाय वर्च्यू ऑफ दैट इन जनरल. सो माई रिक्वेस्ट इज कि आप जो है आपकी क्वेरी है, अगर आप टाइमली थ्रो कर दें, बाय द टाइम तरुण जी इसको डेलिब्रेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपनी क्वेरीज को ध्यान में रख करके अपनी क्वेरीज अगर रेज करना चाहते हैं तो तरुण जी के डेलिब्रेशन के साथ साथ ही आप अपनी क्वेरी को आगे लेके आए. तो उसमें फिर अशोक जी और गौरव जी होंगे और तरुण जी हैं, तो वो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच अच्छा हो जाता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आ जाता है. With this initial words, I request now Tarunji to please take over from here, and then we'll move on to the next point from with Ashokji and Gauravji. Please, over to Tarunji. Thank you, Vinay sir. Good afternoon, everyone. So in the month of April, we do not have any notifications or circulars issued by the department, but primarily three things have been informed, or three things have come up. The first thing is the change in the date by which we have to generate the e-invoice. So theoretically, when I issue an invoice, I have to issue the IRN. That is, the e-invoice should be issued simultaneously. The IRN should be issued simultaneously. Then only it is a valid invoice. However, we had a luxury, we had the privilege that if even after a specific period, or say after a gap of 30 days, 40 days, even 1 year, we were able to generate the pending IRNs for certain invoices. Now the government has said that for all taxpayers whose aggregate turnover is more than 100 crore rupees will not be allowed to issue an e-invoice after the 7 days, or after the 7 days of the actual issuance of invoice. So in simple words, if my turnover is more than 100 crore rupees and I have issued an invoice,
I have to mandatorily issue the e-invoice or the IRN in another 7 days. And if I do not issue, then that IRN will not be, or that invoice will be invalid. And technically, I will have to issue a fresh invoice with a fresh date. So this is to be understood. Now, secondly, what I want to highlight from when this information came into news, so I received a call कि basically department ने हमें 7 दिन दे दिए हैं इसको invoice को raise करने के लिए, so there should not be any penalty if there is a delay. So I said that this is only a privilege that the department has given. The provisions have not been changed. They stay in the past 1 month. That the government has issued a drive or issued a new proposition that all the bank accounts feeded in the GST portal should be valid. So they have verified the bank accounts themselves at the back end, and wherever the bank accounts have not been verified, they have asked the taxpayers to verify the same. And if the bank accounts are not being verified, then they are proposing suspension and cancellation of the specified registration. So I would advise that we should go back and check all the registrations of our client, that whether they are the bank account has been properly is properly validated by the backend team or not. And if it is not validated, so one should feed the correct data and the correct details in the bank account so that it is validated. Otherwise, sooner or later, we will receive a notice for suspension or cancellation of our registration. And the third and one of the most important change, and it is rather not a change, but a welcome step. We already had a DIN number verification for central team. So whenever a central team used to issue any notice or communication, so we had an option to verify the DIN. However, this was not applicable in case of state GST. So whenever a state officer was issuing any notice or a letter or a communication, especially if it was issued manually, not through the GST portal, then we do not have any option or any mechanism to verify the authenticity of that particular document. But now on 28th of April 2023, the GST portal has given a new update that they have started a process of document reference number verification, verify RFN, reference verification number. So in that, all the manual documents which have been issued by the officers could be verified. So there would be a verification, there would be a reference number, and that reference number can be verified from the portal itself. So what was earlier missing in the state teams has now been incorporated as a part of document verification. And I think it is not implemented by all the states, but sooner or later we will have some DIN kind of a thing even for the state tax office. And actually it helps a lot. So we can even challenge the validity of notice if it is not bearing DIN. So similarly, we can challenge the validity of state tax officer, which earlier we were not able to do so. So these were the three things that were predominant in the last 1 month. And now I think if we have any queries, we will be taking that, or if any other change which I have not taken. So Gaurav sir or Batra sir will take that. Thank you. Before I hand over to Batra ji, do we have any query with us? Yes, sir. One by one. एक मिनट जानजी सर, अरुण जी एक मिनट होल्ड करें आप एक बार. जी, I am holding. या जानजी जी प्लीज. Tarun ji, आपने अभी एक कोई रेफरेंस दिया रिगार्डिंग if some of the orders or notices are being issued manually, not onto the site. अब उसके अगेंस्ट हम लोगों ने कोई रिप्लाई देना है, या तो हम फिजिकली देंगे क्योंकि वो रेफरेंस नंबर उसमें नहीं क्रिएट होता है, या अगर उसके अगेंस्ट कोई अपील पेंडिंग, हमने अपील देनी है क्योंकि अपील के अंदर रेफरेंस नंबर मांगता है ऑफ द ऑर्डर. So what is the course available to us in that case? Sir, I have got one such case जिसके अंदर order has been issued manually. You have to file the appeal physically, manually. So it is not the, मतलब वो online appeal नहीं होगी उसकी. उसके It is as valid as otherwise. So practically it is being accepted and we are getting the appeals done through that. Okay, fine. Thank you. Yeah, Arun ji please. ये 18 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आया है इंटरमीडिएट सर्विसेज के बारे में. धर्मेंद्र जानी करके सर एक केस लॉ है. तो सर इसमें व्हाट शुड बी आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी अंडर द इंटरमीडिएट सर्विसेज. बत्रा सर. अरुण जी, ये कोई नई जजमेंट नहीं आई है.
ये पहले मुंबई हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच ने दी थी, where there was a difference of opinion between the two judges. So now the matter was referred to the referee judge, and that referee judge has upheld the validity of 13(8)(b). In this particular case, it was challenged that in the case of intermediary, the place of supply should not be the location of supplier. So they challenge the virus of section 13(8)(b) of IGST Act, which deal with the place of supply when either the supplier or the recipient is located outside India. तो सरकार की जीत है, सरकार ने जो कानून बनाया उसको फॉलो करना है, that is all. सर वो C+S ही पे करना है हमें? C+S नहीं कहा, उन्होंने I कहा है. तो सर अब हम क्या I पे करना शुरू I पे, पहले से ही I पे करना है. पहले इस पे कोई कंफ्यूजन था नहीं. We have been paying I from the very first day, and I is only pay. सर वो जो कंफ्यूजन है सर उसमें, गुड आफ्टरनून सर, कि जैसे इंटरमीडियरी में प्लेस ऑफ इंटरमीडियरी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. इन केस यूएस वाला यूके को सप्लाई करता है, इवन देन यू विल हैव टू पे टैक्स. यूएस वाला यूके को सप्लाई करता है तो वो तो सप्लाई है ही नहीं शेड्यूल 3 के हिसाब से. नहीं, बट मैं इंटरमीडियरी हूं ना सर, क्योंकि आई एम एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी. आप ये कह रहे हो कि आपको यूएस कंपनी ने एंगेज किया और ये कहा कि आप ऑर्डर प्रोक्योर करो. आपने ऑर्डर इंडिया से प्रोक्योर नहीं किया, आपने यूके से प्रोक्योर किया जी, और यूएसए वाले ने यूके को ऑर्डर सप्लाई कर दिया जी. सो फॉर एज यू आर गेटिंग योर कंसिडरेशन, यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द यूएसए पर्सन. सो वंस यू आर गेटिंग योर कंसिडरेशन फ्रॉम द यूएसए पर्सन एंड यू आर इंटरमीडियरी, सो ऑब्वियसली you have to pay. It is not an export of service subject to GST, where an integrated tax, that is IGST, has to be paid. IGST, even though nothing has, receiver and both are outside, even then we have to pay GST. अजमानी साहब, लॉ और इक्विटी और कॉमन सेंस छोड़ दो. लॉ को लॉ की तरह से पढ़ना पड़ेगा, कॉमन सेंस कहीं काम नहीं आती है. Intermediary has been defined in the law. Any person who may be called broker, agent, etc., who facilitate the supply of goods and does not supply the goods, principal supply himself. So you are procuring the order for a USA dealer. That order might have been procured from UK. How does it make a difference? That income is taxable in India. That income is subject to GST in India. And 13(8)(b) virus has been upheld by the Mumbai High Court. In case it is not being reversed by Supreme Court, certainly it is subject to GST, even if nothing has been done in India. बता सर इसमें से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? Sir, in that case, if I am besides, I am also rendering services for that. In addition, I mean, I am just. अरे आपने ऑर्डर कैसे लिया अजमानी साहब? यूके से. कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कहीं ना कहीं आपके कोई रिसोर्सेज होंगे. So you have provided service to US, the benefit has accrued to US dealer. You have provided him an order, you have earned certain money, and in order to qualify for export, 5 conditions need to be satisfied. Number 1, supplier should be in India. Recipient should be outside India. Payment must be received in convertible foreign exchange. The place of supply should be outside India, and it should not be distinct identity of the same person in terms of explanation to Section 8. ये 5 कंडीशंस हैं. अब प्लेस ऑफ सप्लाई जब इसका इंडिया में हो गया तो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता ना, जब पेमेंट आपको करोड़ फॉरेन एक्सचेंज से है. इस बात में तो आप भी मना नहीं करते कि मैंने इनकम अर्न की, मैंने सर्विस प्रोवाइड की, और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद मुझे कंसिडरेशन मिली. इनकम वर्ड तो ठीक नहीं है, बट कंसिडरेशन मिली मुझे. मैंने सर्विस प्रोवाइड की यूएसए वाले को, उसके लिए ऑर्डर प्रोक्योर किया यूके से. व्हाई टैक्स शुड नॉट बी लेविएबल? इफ द लॉ सेज सो, यू हैव टू. सर अभी जो जजमेंट में तो उसने यही बोला ना कि ये वाला इश्यू बड़ा ऑब्जर्व हो जाएगा. इट हैज टू बी, ये इसमें लोकल नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये लोकल है ही नहीं. मतलब C&S नहीं लगना चाहिए, आई लगेगा. सर तो C&S नहीं लगेगा, आई लगेगा. तो लेकिन सर इस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मेरा तो लोकल होगा. इंडिया. Therefore, the place of supply is in India. Therefore, it is not export. In the case of export, place of supply has to be outside India. सर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकल होगा और C&S लग नहीं सकता, तो फिर आई कैसे लग गया सर? अरे भाई सब 3 आदमियों ने 3 कहानियां गढ़ी हैं, और 3 कहानियां गढ़ने के बाद ये कहा है कि लगेगा, तब लगेगा. सर उन्होंने ये जो पहले बेंच मेंबर थे, उन्होंने भी जो डिसीजन दिए थे, जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, उनकी अपनी एक रीजनिंग थी. ये थर्ड आदमी ने अपनी एक अलग लाइन ऑफ रीजनिंग दी है.
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. At the end of the day, 13(8)(b) is valid. The place of supply is in India. It's an international transaction. Recipient is outside, so you have to pay I only. No, sir, it means place of supply is India. I'm from Delhi. Place of supply is Delhi. So it means local. Because the recipient is outside India, and this being an international transaction, they have quoted so many constitutional provisions. I think this is not the platform where I can discuss all the 289, 269, 246A, etc. So at the end of the day, he has stated it is I, it is I. Even though place of supply is local, even then it is treated as industrial. Because this transaction is between a recipient who is located outside India, it's a part of international trade, and state has no authority to levy tax on that. Correct? Interstate sale और जो बाहर के स्टेट है उसमें सिर्फ सेंट्रल टैक्स ही लग सकता है, इसलिए IGST ही लगेगा. सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या देश में रिटर्न भरते हुए जो B2C में पंच करते हैं? क्या दोबारा बोले जैन साहब? अरोड़ा जी सर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली देते हैं तो वो सर आई लेगा ही नहीं रिटर्न भरने. क्यों दिल्ली लिखोगे? हाँ, अदर टेरिटरी लिखोगे बाहर. क्या लिखे सर? अदर टेरिटरी आउटसाइड इंडिया. हाँ, अदर आउटसाइड इंडिया. तो सर फिर प्रोविजन का क्या हुआ जो प्लेस ऑफ सप्लाई को डिफाइन कर रहा है कि ये वही प्रोविजन में कॉन्फ्लिक्ट था. उन्होंने हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन दुनिया जहाँ के प्रिंसिपल लगा के ये कह दिया. अब कह दिया तो मान लो ना, या तो उसको चैलेंज करो सुप्रीम कोर्ट में जाके. और सर अदर टेरिटरी करके आई पे कर दे. दैट इज. थैंक यू सर. सर यदि मेरे को मैं फॉरेन ओवरसीज एक्सपोर्टर का इंपोर्टर का मैं यहाँ पे उनका सर्विसेज इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, उनका माल देख रहा हूँ कि प्रॉपर बना या नहीं बना, मैं ऑर्डर नहीं कर रहा, देन इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. नो. अरे क्यों एक्सपोर्ट? क्या कहते हो? दोबारा बोलो. सर मैंने ऑर्डर प्रोक्योर नहीं किया. आप बाहर इंस्पेक्शन की तो वैसे ही 13(2) के हिसाब से ये तो परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो वैसे इंडिया में हो गया, एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता. इस पे भी टैक्स लगेगा सर. ये इवन इफ, अरे अजमानी साहब समझने की कोशिश करो. We have to look at the nature of service, then we have to look at what is the subsection which shall be applicable. When I am doing the inspection of goods, I am carrying out an activity where the goods have been made available to me, then only the service can be provided. So in terms of section 13(3), if I am not mistaken, then it is a performance-based services. So obviously in the case of performance-based service, the place of supply is in India. Even it is not an export of service. Even if you are getting the payment in control foreign exchange, you are liable to pay GST on this transaction also. सर यदि आप और मैं हम इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सर एक चीज ऐड बत्रा जी यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है सर. बत्रा जी, सुधीर जान जी सर, इसमें ही इज टॉकिंग अबाउट द इंस्पेक्शन एजेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, हु इज बेस्ड इन दिल्ली. तो ये तो CGST और SGST बन जाएगा सर. मैंने ये, अरे मेरे दोस्त, I am doing inspection for a client who is located outside India. Right, sir. This is a transaction wherein one of the recipient is outside India. So either it is in the course of import or in the case of export. So once it is not in the case of import or export and is subject to tax, then you have to pay the tax. And because you're dealing with the foreign recipient, then in my humble opinion, only integrated tax can be levied. सर यदि हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तरुण कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले तरुण को सुनो. जी आप कुछ कह रहे थे सर. सर 12AA सीरियल नंबर ऑफ IGST नोटिफिकेशन ने एग्जेम्प्ट किया हुआ. इफ द इंटरमीडिएरी सर्विसेज आर इन रिलेशन टू गुड्स, देन दोज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेशन. सर इफ यू अलाउ मैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ. प्लीज एक मिनट रुको जरा. गुड्स. इसको छोड़ दो. इसके लिए तो बेटर ऑप्शन क्या है? यू गो टू शेड्यूल 3 where it says if the location of the supplier and recipient, yani you are buying the goods from Dubai and sending it to China, that is outside the Indian taxable territory, not taxable. Similarly, it is also saying location of both has to be out. In our case, it is not location of the both. My intermediary is in India. This notification shall not be available. इसमें इंटरमीडिएटरी इंडिया में रहेगा, सप्लायर यूएस में. अरे पढ़ो तो सही दोस्त,
services provided by an intermediary when location of both supplier and recipient of goods is outside the taxable territory. तो गुड्स के मतलब जो सप्लायर और रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है, मेरे को यूएस से ऑर्डर एक अलग, आप ये कहना चाह रहे हो in a particular situation when the goods are going from USA to UK, you can take availment of this exemption. Yes, I am only on the taxability first of all. Whether the exemption is available or not, that is separate issue. For example, these services are taxable. I can subject to integrated tax, and now if any exemption is available, I'll certainly avail for it. That's a different issue altogether. Yes, sir. इसमें देखिए कॉमन सेंस नहीं लगाए, मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ जो ट्रांजैक्शन है वो नेचर ऑफ सर्विस के हिसाब से सेक्शन 13 बनेगा. अगर सिर्फ इतना ही काम होता कि रिसिपिएंट की लोकेशन से डिसाइड होना होता तो 14 सेक्शन की जरूरत नहीं थी. They had different parameters. We have to go to the specific service. जो अजवानी साहब ने कहा, पहली बार मैं इंटरमीडिएट हूं, दूसरी बार मैं इंटरमीडिएट नहीं हूं. I am providing service on principal basis for inspection of goods in India. That's right. So that for that purpose, it is 13(3) which is applicable. So every time we have to look at the nature of service and then decide the place of supply. So यदि मैं प्रोफेशनल सर्विसेज देता हूं तो मुझे लगेगा सर? नहीं लगेगा, क्योंकि वो रिसिपिएंट बेस्ड है, वो 13(2) में आती है. 13(1) तो सिर्फ इतना कहता है कि this section shall be applicable when provider or recipient one is in India. तो 13(2) में जो आती है recipient based है. तो as a consultant, if you are not executing anything, either you are an architect or you are a chartered accountant, company secretary, cost accountant, or any professional, they are all subject to export provided you get the payment in convertible foreign exchange within the stipulated period as prescribed under the law or as extended by the RBI. सर मैं जीएसटी इंडिया का दे रहा हूँ कंसल्टेंसी, मैं बाहर का नहीं दे रहा सर, मैं इंडियन इनकम टैक्स का दे रहा हूँ. आप किसी की कंसल्टेंसी दें सर, once you are giving an advice consultancy, then it is recipient based, which is a general rule. Recipient, if it is outside India, if you are providing service of income tax consultancy to Mr. Batra in India, taxable. If you're providing this consultancy to Mr. Batra, who is presently in USA, non-taxable, provided you get the payment in converted foreign exchange within the specified period or extended period by the RBI. इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स में भी तो सर वही कर रहा हूँ ना कि मैं दे रहा हूँ. इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स का रूल डिफरेंट है, उसका पैरामीटर डिफरेंट है अजमानी साहब. वो भी मैं सर्विसेज दे रहा हूँ ना सर, वो भी मेरी सर्विसेज है. अजमानी साहब अगर ऐसा होता तो सारी सर्विस का एक ही रूल होता. You are not trying to understand. Every service according to the nature will have a different place of supply. When I am providing inspection services or repair services or photography services or coaching services or security service, where either the goods has to be made available or the person has to make himself available or his agent. In that case, it is performance-based services where the place of supply is not recipient-based. There is a specific section. General section 13(2) will apply only when your service does not fall in subsection 3 to 14. If section 3 to 14 is applicable, then undoubtedly you cannot go to general section. So in this particular case, in the case of inspection of goods, section 13(3) is applicable, wherein the place of supply has specified as India, where the inspection is being done. So in spite of the fact that consultancy service and inspection service both are service, there is no doubt about that. But because of the nature of service, the place of supply is different. For example, in the case of immobile property, when it is located outside, it is a different parameter. Similarly, in the case of boarding, similarly in the case of transportation of goods, where the goods are destined. So everywhere these provisions have been provided. You have to go to the specific provision. All are services. Section 13 गुड्स पे लगता ही नहीं है. सेक्शन 10 और 11 लगता है गुड्स पे. जहां तक क्वेश्चन है, सेक्शन 13, 12 एंड 13 लगता है सर्विसेज पे, और 13 लगता है व्हेन सप्लायर और रिसिपिएंट वन ऑफ देम इज आउटसाइड इंडिया, दैट इज आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी. इसको तो ये सारे जो रूल बने हैं वो इसीलिए बने हैं, नहीं तो फिर एक रूल ही बहुत था. अगर अजमानी साहब आपका आर्गुमेंट चले कि सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विसेज तो सारे दे रहे हैं. ट्रांसपोर्टर भी सर्विस दे रहा है, बोर्डिंग की भी, विद द प्लेस ऑफ बोर्डिंग. बता दीजिए एक मिनट, अजमानी साहब एक मिनट. मैं कह रहा हूं कि आई सपोज द मोर क्लैरिफिकेशन प्रोबेबली इज नीड रिक्वायर्ड टू अजमानी सर
I just suggest, sir, since many things has traveled now, and can you discuss if there is still not clarification one-to-one with Ashok Batra ji, if that be so? Sure, sir. Sure, definitely. Batra sir, is that okay? यहाँ मुझे कोई इशू नहीं है। Please. one very small and concluding thing. Please, sir. और possibility है सर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मैं दिल्ली दिखा दूं और आईवी पे हो जाए, तो इज इट नॉट बेटर देन शोइंग इट एज अदर टेरिटरी? मुझे नहीं पता, पोर्टल मैंने कभी नहीं देखा। ये अगर पोर्टल दे रहा है हमें आईजीएसटी जमा कराना है, आप जो मर्जी दिखाओ प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ सर, मेरे पास अरुण जी, पोर्टल परमिट्स यू आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली एंड योर पोर्टल परमिट यू के प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली करके आईजीएसटी देना तो दे दो। मैं तो पोर्टल देखता नहीं हूँ। अरुण जी, लार्जर पॉइंट इज आई में टैक्स जाएगा, उसको आप कहीं पे मर्जी दिखा दो, कहानी खत्म, क्योंकि अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा है। जी जी। अब मैं आता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट से। उससे पहले विनय जैन की ऑब्जर्वेशन 1.87 लाख करोड़, पिछले साल कितना था सर? 167, 12% की ग्रोथ है। पिछले साल और इस साल की प्राइस इन्फ्लेशन कितनी ग्रोथ है? इन्फ्लेशन तो 100 रुपए का माल जब 110 में बिकेगा तो आपका टैक्स 18 रुपए से 19 रुपए 80 पैसे हो जाएगा, पेन एक ही बिकेगा। 12% की ग्रोथ है सिर्फ पिछले साल अप्रैल टू अप्रैल। और उसके भी रीजन है कि अप्रैल में हाईएस्ट ग्रोथ क्यों होती है। उसके 3-4 रीजन है। एक तो उनके टारगेट खत्म होते हैं, पैसा फेंकते हैं ये मार्च तक, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च होता है। दूसरा ये टारगेट स्कीम्स होती है, क्लोजर होता है, हर कंपनी ने अपने इंसेंटिव दिए हो, इतना माल उठाओगे जितना इंसेंटिव मिलेगा। तो इवन इफ आई एम नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ ए सेल, आई विल पिक अप द मटेरियल। सो उस वजह से ये टैक्सेस आते हैं। एनीवे, आई एम नॉट सेइंग कि दिस टैक्स इज नॉट ग्रोइंग, दिस टैक्स इज ग्रोइंग एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतना बड़ा कोई ऐसा खुश होने वाली खबर नहीं है। 187 और 167 से हो तो 12% बढ़ा और 7% तो आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन है, उसका रीजन लगा। पर आप इसको डाइल्यूटली जाएंगे, माइन्यूटली जाएंगे तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है। जम्मू एंड कश्मीर इज द हाईएस्ट ग्रोथ 44%। इंपोर्ट हैज डिक्लाइन, आईजीएस की डिक्लाइन होने के बावजूद ये रेवेन्यू बढ़ा है। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिटेल रिसर्च, बट इट इज नॉट ए ग्रेट न्यूज इकोनॉमी के लिए कि अगर 7% तो महंगाई से बढ़ना ही था, 2-4% रेवेन्यू बढ़ गया, तो ऐसा नहीं कि इकोनॉमी बड़ी बूम कर रही है। चलिए सर, कमिंग बैक टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आज मैं विनय जी से बात कर रहा तो मैं ये कह रहा था कि जब से जीएसटी आया है, कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। वी हैव सीन हाउ मेनी प्रोफेशनल्स including chartered accountants have been arrested in the GST. I don't want to share the figure. I don't want to demoralize you. And then in last 1.5 months, what NAFRA has done to you, how many members' name has been removed, how many penalties have been imposed, and now very recently a notification under PMLA where you can also be subject to prosecution under that act if you contravene certain provisions. मैं उसके मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इस बात पे जा रहा हूँ, माइंडसेट पे जा रहा हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस होता है। मेरे पास बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं, when I convince them कि this transaction is subject to tax, इससे सर मैं भी मानता हूँ इस पर टैक्स लगना है, लेकिन सर कोई रास्ता बता दो, एग्रीमेंट बदल दूं, बिल बदल दूं। अरे if in substance this transaction is taxable, why you want and you're convinced this section is taxable? If it's a question of interpretation, I can understand, you can argue it. If it's a question of something else, I can understand. But once you yourself agreeing, yes, this transaction is subject to tax, then why are you asking an expert कि सर इसका बिल बदल दें, इसमें इनवॉइस बदल दें? और ऐसा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, मेरे हिसाब से 80 to 90% सीएस कहते हैं, as if the money is going out of their own pocket. You can say, is there any way to plan the transaction in such a manner that there can be minimization of tax or avoidance of tax? वो एक अलग बात है, avoidance of tax. वो एक अलग situation हो सकती है. Sir, this is my transaction. Can I structure it in a different manner so that taxability is either minimized or it can be avoided? But once you are following a procedure where others are also doing, others are paying the tax, you are asking the expert, तो नहीं सर इसका तो बिल बदल देते हैं, इनवॉइस बदल देते हैं. What do you mean by बदल देते हैं?
अगर कहीं प्लानिंग हो सकती है, we can enter into a new agreement where that possibility can be worked out or something, some possibility is there. Then we can say that from now onwards, can we change our business model? Can we change our transactional model so that either it should not attract a tax or it should attract tax at a lower rate? For example, there are 2-3 supplies, everything is getting taxed at 18%. I give you a suggestion, why don't you enter into 2 agreements? Or one particular supply is being provided by some other firm or your sister concern. So by doing so, we are splitting up the consideration. Part of the consideration may be liable to tax at a lower rate and part of the consideration may be liable to tax at a higher rate. So you save money. So my humble request, bank audit gaya, बारी 9C गया, my humble request, client के कहने से इसकी ट्रांजैक्शन को बदल दें, वो ना करें. If planning is possible, I am saying you must use your innovation. You must do something to save the taxes if it is possible. But never ever suggest कि सर डॉक्यूमेंट बदल दें, ये कर दें, वो कर दें. What for? A person has entered into an arrangement, he has earned the money, he is liable to pay the tax, let him pay the tax. If he has committed some commercial error, let him suffer. Anyway, sir, now coming to the judgments, अगर आप पिछले 1 महीने को देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो झड़ी लगा दी है जजमेंट्स की. एक कॉस्मो फिल्म की जजमेंट आई, एडवांस ऑथराइजेशन में प्री इंपोर्ट की कंडीशन थी. आई एम श्योर आप कस्टम नहीं करते होंगे, बट इस जजमेंट से एक बात आप सीख लें कि अगर किसी एग्जम्पशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी अब रेवेन्यू के फेवर में है कि इट इज फॉर देम. अभी हमने वीके वेस्ट फुटवेयर देखा था, उन्होंने कहा ये अगर आपको रिफंड देना तो उनकी मर्जी है कितना देंगे. नाउ दिस इज अनदर जजमेंट. Though this pre-import condition has been subsequently withdrawn also, but for that limited period they have upheld. Then a very innovation बहुत सारे प्रोफेशनल्स करते थे कि सर सर्विस टैक्स में वॉश कॉन्ट्रैक्ट में 100 रुपए का वॉश कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरे के ऊपर 15% सर्विस टैक्स दे देते हैं, तो जो इनपुट है उसका भी क्रेडिट ले लेंगे. Now this issue has also been resolved by the Supreme Court. उन्होंने कह दिया कि you cannot do like that. It is a wash contract service for the purpose of segregation of the value of material. Number of mechanism is being given. You have to follow that. इसका मतलब ये नहीं है, ये बहुत बार आर्ग्यू किया गया कि subject to the provision of section 67 rule 2A was there, subject to the provision of 67 rule 3 was there. Then they say, what does 67 say? Taxable is only the service portion. If you look at the constitutional scheme, the government cannot tax goods. It can be taxed only by the states. If that being so, by having a mechanism, तो ये जिस आदमी ने कहा उस केस की पता कितना क्रेडिट लिया हुआ था? 112 crores. तो लकीली फॉर हिम कि डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसकी लायबिलिटी भी आप 2A में डिटरमिन करो या कंपोजिशन में करो, इसने ऑप्ट किया है तो अकॉर्डिंगली यू अलो इन द क्रेडिट. So this kind of innovation, how dearly it is going to cost you? I have seen these kind of technical arguments in number of cases, and they have come back to the professionals, and ultimately their client has suffered. तो कहीं भी innovation भी करनी है तो कम से कम within the framework of law करें. After the Gujarat High Court, जहाँ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का इशू आया तो उन्होंने कहा जी 1/3 कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो ऑप्शनल है, जहां वो अवेलेबल नहीं है तभी ये 1/3 कॉस्ट और प्रिंसिपल होगा. उसकी लाइन पे एक मद्रास हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दे दी है, विच यू कैन आल्सो रेफर. बहुत सारी जजमेंटें आ गई हैं. अगर आपको जबरदस्ती डिपार्टमेंट ने आपसे टैक्स जमा करवा लिया ड्यूरिंग सर्च, तो अब पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने कहती है जब सर्च में करवाया रात को 1 बजे जमा करवा रहे हो, it cannot be voluntary tax. Department कहता था voluntary non tax जमा कराया because the documents were shown, they have admitted their liability and they paid the tax. So in case you want to take a U-turn, you can go to the High Court, challenge it कि मेरे से टैक्स जमा करा लिया था, अभी तक शो कॉज नहीं आया या प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई, तो that money can come back to you. अब मैं कई बार कहता हूं कि up to tribunal, these are all statutory court, High Court and Supreme Court is constitutional court which can go beyond the books of accounts. अभी तक जितनी भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आई सब में ये कहा गया कि इट इज ओनली द सप्लायर हु कैन सीक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग. कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा
once the recipient is bearing the incidence of tax, उसकी local stand आएगा, कैसे खत्म करोगे? So Calcutta High Court has gone beyond the books. Whatever has been provided in our CGST Act, only the person who is undertaking this transaction of supply can seek the authority of advance ruling. Now it has gone beyond it, and they have stated even the recipient can go for the. अभी हमने मुंबई हाई कोर्ट का केस डिस्कस किया, अजमानी जी भी थे, अरोड़ा जी भी थे, तो वो जजमेंट आई है रेफरी जज की, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट. एक बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट आई है इन द केस ऑफ ज्वेलर बाय राजस्थान हाई कोर्ट. उसमें इशू ये था कि मेरा नंबर कैंसिल हो गया, मैंने रेवोकेशन लगाई, कैंसिल हो गई, अपील की, कैंसिल हो गई. अब ये स्कीम आ गई जहां उन्होंने कहा जी आप टैक्स जमा करा दो. उन्होंने कहा कि नाउ बिकॉज दिस स्कीम अलाउज यू टू पे द लेट फी एट अ कंसेशनल रेट एंड पे योर टैक्सेस, फाइल योर रिटर्न, so your number can be restored. Question came whether the department will allow me the ITC during that period. The first period till cancellation 16/4 लग गया, निकल गया टाइम. जब मैं कैंसर डीलर था उस टाइम पे जो परचेजेस की तो क्रेडिट इज अवेलेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड पर्सन. So a question came whether the Rajasthan High Court said that one is willing to pay output tax liabilities, filing the return, he has paid your late fee. So this credit should also be made available to him. Although High Court judgments are similar to authority of advance ruling applicable to the applicant, but whether that ratio can be applied, and in case the amounts are substantial, I'll certainly suggest my professional colleague, professional brothers, they can go to the High Court and get the relief. एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, हालांकि कंफ्यूजन है, अगर आप उसको सब्जेक्ट को एप्रिशिएट नहीं करेंगे और आप बात करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. दैट क्वेश्चन इज, इफ ए नॉन रेजिडेंट पर्सन हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू ए इंडियन रेजिडेंट, इज इट इंपोर्ट ऑफ सर्विस और दिस टैक्स हैज टू बी पेड बाय द पर्सन एजेंट who has given that property on rent to you, who has done all this, legal documentation, etc. Non-resident USA में उसकी प्रॉपर्टी गुड़गांव में उसने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी अपने एक दोस्त को, विनय जैन जी को, कि भैया ये प्रॉपर्टी किराए पे दे दो. अशोक बत्रा गया, किराए पे ले दिया. अब क्वेश्चन ये है कि इस प्रॉपर्टी पे जो जीएसटी लगना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, so obviously whether it is import or service, Ashok Batra has to pay, or Vinay Jain being an agent of NRI, he is liable to pay. विनय जैन तो नहीं पे करेगा सर, बस विनय जैन ही करेगा. अभी नहीं, विनय जैन नहीं करेगा, उसका मिलना कुछ नहीं इसके पास. सर करना तो विनय जैन को पड़ेगा. मैं रीजनिंग देता हूँ एक से. हाँ प्लीज सर. अगर आप असेसी की डेफिनेशन में देखें तो असेसी इंक्लूड्स हिज एजेंट, यहाँ सप्लायर इंक्लूड्स हिज एजेंट आल्सो. ठीक, यू आर द एजेंट ऑफ द सप्लायर, सो यू हैव टू सीक रजिस्ट्रेशन एंड पे द टैक्स. चलिए सर, दिल्ली हाई कोर्ट. ये आप इसलिए भी होगा क्योंकि जो शिपिंग लाइंस भी करती है वो भी ऐसे ही करती है, इंडियन एजेंट को अपॉइंट करती है, उनका इंडियन एजेंट रजिस्ट्रेशन लेता है, फिर वो फॉरवर्ड चार्ज लगाता है. तो आई थिंक सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा. कौन बोल रहा है? अंकित अग्रवाल. अंकित जी इस तरह से कंपैरिजन नहीं करें. जहां तक OIDR की सर्विसेज हैं, पहले नेचर ऑफ सर्विस को देखें, उससे रिलेटेड प्रोविजंस देखें, नोटिफिकेशंस देखें. OIDR में उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है, इट इज द सप्लायर हु हैज टू पे द टैक्स. If he is not having his office, he has to appoint an agent. If his agent is not there, he has to appoint some authorized person. सर मैंने वो OIDR वाला नहीं, शिपिंग लाइंस वाला बोला था. That is what I am saying. ना शिपिंग लाइन का अलग प्रिंसिपल है. So what I am trying to say, जैसे अजमानी साहब कह रहे थे ना कि मैं सर्विस ही दे रहा हूँ, चाहे वो कंसल्टेंसी है या इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स की है, तो उससे फर्क पड़ गया नेचर ऑफ सर्विस से प्लेस ऑफ सप्लाई का. तो हम दो सिचुएशन को पैरेलली कंपेयर नहीं करेंगे अनलेस अदरवाइज दे फॉल अंडर द सेम प्रोविजंस. दिस इज व्हाट आई लाइक. मेरा इससे रिलेटेड एक क्वेरी है अशोक जी. पॉइंट ये है कि अगर वो एजेंट को डिस्चार्ज करनी, एजेंट बिल करेगा, से इन द केस व्हिच यू रेफर्ड, विनय जैन को अगर वो डिस्चार्ज करनी है लायबिलिटी, तो जो यूजर है वो टीडीएस कैसे काटेगा?
वो इनकम टैक्स वाले देखेंगे, मुझे क्या करना। ये नहीं है, ये तो काम होता है। देखिए एज ए रिसिपिएंट मुझे टैक्स काटना है, मैं काट दूंगा, मुझे जिसके ऊपर में कहोगे जमा करा दूंगा, मुझे उससे क्या लेना देना है। टीडीएस तो वो एनआरआई का कटेगा ना। मुझे कोई लेना देना नहीं है इनकम टैक्स के प्रोविजन क्या है, मैं तो आपको सिर्फ जीएसटी की बात कर रहा हूँ। वहां भी कोई होगा, क्योंकि मैं कुछ कहूँ या सारे तो अंदर बैठे हुए हैं, मेरे को पकड़ लेंगे। टीडीएस तो एनआर का कटता है, क्योंकि एजेंट की इनकम नहीं है वो, इनकम पार्ट इज द नेचर ऑफ एनआर ओनली, तो एनआर का टीडीएस कटेगा। अब अंकित जी और आप बात करो, कर लेंगे वो तो। ये तो सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं, मैं इनकम टैक्स पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं C&F एजेंट हूँ। अब मेरा टीडीएस जो है परचेज और सेल ऑफ गुड्स के ऊपर भी है, तो C&F एजेंट भी तो आज की डेट में किसी तरीके से टीडीएस को कंप्लाई कर रहे होंगे कि मैं जीएसटी का, आई एम दी CF एजेंट, गोदरेज कंपनी है और मेरे कस्टमर्स हैं, मेरे बीच की ट्रांजैक्शन जीएसटी में तो डीम्ड सप्लाई है, बट पर से ट्रांजैक्शन इज बिटवीन गोदरेज एंड दी एंड कस्टमर, तो वो C&F एजेंट वाला कॉन्सेप्ट सीधा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा ना। बताइए एक चीज पूछनी थी। गुड मॉर्निंग सुनील खन्ना। बताइए वो एनआरआई क्यों नहीं पे करेगा, एनआरआई रजिस्ट्रेशन क्यों ना ले ले? मैंने कब मना किया? एनआरआई रजिस्ट्रेशन ले ले प्रॉपर्टी की। मैंने कब मना किया? वो है यूएसए में, रजिस्ट्रेशन कैसे लेगा? हैं? वो कैसे लेगा रजिस्ट्रेशन? ही हैज टू कम टू इंडिया ना। तो उससे बेटर ये नहीं है कि विनय जी का अथॉरिटी दे दे, विनय जी नंबर ले लें उनके पे। नहीं, हम तो सब एनआरआई को रजिस्टर कर देते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। अरे कर देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब झगड़ा ही नहीं है ना। हाँ, रजिस्टर्ड आदमी फिर तो डिस्प्यूट कहाँ है? नहीं, इस पे सिर्फ एक चक्कर है, जो एनआरआई के प्रोविजन है ना सर, उसके अंदर वो कहता है कि 3 मंथ्स का उसको एडवांस जमा कराना है एनआरआई को, और उसकी रिटर्न जीएसटी 5 भाई वो दो तरह के नंबर हैं। इफ यू आर टेकिंग ए रेगुलर रजिस्ट्रेशन तो नहीं है ये। हाँ, रेगुलर लेने कोई दिक्कत तो नहीं ना सर? नहीं, कोई दिक्कत। ठीक सर, थैंक यू। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी एक कुछ सर्विसेज है, जैसे ऑटो रिक्शा है, अगर आप वैसे लेंगे तो टैक्स नहीं लगता, बट इफ यू अवेल दिस सर्विस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तो उन पे टैक्स लगता है। तो इसको भी चैलेंज किया गया डिस्क्रिमिनेशन पे, दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया। मैं आपको जजमेंट सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आपने उन क्लाइंटों से डील करना है, कि आज की डेट में कोर्ट भी जो इंटरप्रिटेशन देती है, बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज इन फेवर ऑफ द रेवेन्यू। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। अभी डबल टैक्सेशन का इशू था, एक दिल्ली ट्रिब्यूनल की जजमेंट रिवर्स कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। एक डिजाइन आया पेपर पे, उस पर कस्टम ड्यूटी लग गई। अब डिपार्टमेंट कहते हैं डिजाइनिंग सर्विस में कवर होता है, भाई इस पे तो आप सर्विस टैक्स भी दो। तो ट्रिब्यूनल ने कहा नहीं भैया, ये तो कस्टम दे दिया, इट्स वंस इट इज अ गुड्स, हाउ कैन सर्विस बी लेविएबल? बट नाउ एपेक्स कोर्ट सेज बोथ द टैक्सेस कैन बी देयर। एक ट्रांजैक्शन में डबल टैक्सेशन इफ 2 टैक्सेबल इवेंट्स आर देयर, क्यों नहीं दोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आज आप गाड़ी खरीदते हैं, आईजीएसटी फिर रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स भी देते हैं। अगर 2 टैक्सेबल इवेंट जब पहले होता था, मैन्युफैक्चर पे होता था, फिर सीएसटी लगता था, फिर वैट लगता था, तो उन्होंने ये भी कह दिया ऑल्दो थैंक्स टू जीएसटी नाउ बिकॉज इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल टी इट हैज टू बी आइदर ए गुड्स और ए सर्विस, सिंगल टैक्स लगेगा। बट जिनकी पुरानी प्रोसीडिंग चल रही है, तो परसों जो मैं ट्रिब्यूनल में ही था, तो वहां एक सज्जन ये आर्ग्यू कर रहे थे, तो कोर्ट ने कहा भैया अपडेट हो गया, ये जजमेंट इसको पढ़ के आइए। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट आपको बैंक गारंटी के फेवर में दी थी डायरेक्टर्स के केस में। उन्होंने कहा इट इज फॉर द डिपार्टमेंट टू प्रूव देयर इज सम फ्लो ऑफ कंसिडरेशन। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देन माय सेक्शन वेरी क्लियरली सेज सर्विस सेक्शन हो या सप्लाई सेक्शन हो, इट हैज टू बी फॉर ए कंसिडरेशन। So there will be no one important judgment in the case of corporate guarantee in favor of the SFC 2023 VIL 34 Supreme Court ST. Now, Madras High Court has given another verdict wherein they say that if the DIN is not being mentioned on the order, that order itself is non-est. आप दोबारा ऑर्डर पास करो, टाइम लिमिट को निकल गया, उसकी डिमांड छोड़ो, दूसरे वाले की डिमांड निकालो, तो DIN की वेरिफिकेशन जो करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा, जो शायद मैं पिछली मीटिंग में डिस्कस कर चुका हूं, कोई जजमेंट पुरानी है बट मैं रिमाइंड करवाना चाह रहा हूं। जो लॉन्ग टर्म लीज में आप 1 lump sum प्रीमियम देते हैं इन द केस ऑफ जीएसटी, द सुप्रीम कोर्ट, ऑफ कोर्स नाइदर इट इज अ स्पीकिंग ऑर्डर नॉर इट इज ए वन लाइनर, they say that we agree with the stand taken by the Bombay High Court that lump sum premium is subject to GST.
I think we have already discussed this in the last meeting. I am not sure. No. Then this is again a very important judgment, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म लीज पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और आप कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करो सामने वाले को, वो अपनी रीजनिंग और लॉजिक पे आता है। जबकि मैं बार बार कहता हूं, लॉ एंड इक्विटी डजंट गो हैंड इन हैंड। आप आज पे जितना मर्जी आर्गुमेंट कर सकते हैं, बट द फैक्ट इज अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लमसम प्रीमियम पे भी जीएसटी लगेगा, सो फॉर एज जीएसटी इज कंसर्न। विद दिस, बिकॉज द टाइम इज ऑलरेडी 3:55, सो विनय जी, over to you. Thank you, Batra sir. और ये आज तो it was a very good. मैंने शुरू में इसका ठीक कहा था कि आज बुद्ध पूर्णिमा को विशेष ज्ञान प्राप्त होने वाला है, तो आज आपका विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटी सी इशू आ रही है काफी ना आजकल ASMT 10 में कि क्लाइंट्स ने जैसे CGST और SGST पे कर रखा है, होना चाहिए था IGST। अब डिपार्टमेंट वाले कहते हैं जी आप ये जमा कराओ पहले और इंटरेस्ट भी जमा करो एंड यू क्लेम रिफंड फॉर द IGST पेड एक्सेस। तो इस चीज को कैसे हैंडल किया? कौन कर रहा है क्वेश्चन? सर ये गुड़गांव में हो रहा है। नहीं, बोल कौन रहा है, क्वेश्चन कौन कर रहा है? सर संजीव कपूर। संजीव कपूर जी, पहले सेक्शन 19 ऑफ IGST एक्ट एंड 77 ऑफ CGST एक्ट पढ़िए। सब सेक्शन 2 कहता है इंटरेस्ट इज नॉट लेविएबल। हाँ जी, उसके लिए तो कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, उसको किताब पढ़वा दो। राइट। तो इंटरेस्ट का इश्यू तो हो गया खत्म। हाँ जी सर। अब इसके दो रास्ते हैं। अगर आप लीगली बात करते हैं तो लीगली तो यही है कि आप उनसे रिफंड क्लेम करें और उसको टैक्स जमा कराएं। अगर आप प्रैक्टिकल बात करते हैं तो आप उनको खींचो और उसकी रिफंड की एप्लीकेशन लगा दो। पहले केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जो अर्ली 70s या अर्ली 80s में आया था, साई जी करके। उसमें उस सज्जन ने यही किया, उसने रिफंड की एप्लीकेशन लगा दी। डिपार्टमेंट ने कहा मैं रिफंड दे नहीं सकते, आपकी डिमांड है, बोलो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लो। बात खत्म, इंटरेस्ट लगना नहीं है, प्रॉब्लम इज ओवर। ओके, नहीं तो बेटर ऑप्शन कौन सी रहेगी दोनों में से जो प्रैक्टिकल रहे? मतलब सर आपको ये कहे कि बीवी की हाइट कितनी होनी चाहिए, इस पर्सनल लाइकिंग की बात है। आपकी अपनी हाइट के ऊपर बीवी की हाइट बदल करती है। ओके, अब एक यूनिफॉर्म फार्मूला तो मैं कैसे दे दूं? राइट। अगर ये 5 करोड़ का अमाउंट है, नहीं अमाउंट तो 7-1 लाख का है। नहीं, मैं किसी के लिए 7 लाख भी 5 करोड़ के बराबर हो सकते हैं। अगर ये अमाउंट ऐसा है कि क्लाइंट इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे, तो यही ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप पे कर सकते हैं तो बेटर है, 2 महीने की बात है, वहां पे करें, यहाँ का रिफंड लगा दें, कर ले, बात खत्म। बता सर कई बार जो है ना हाइट का सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो मतलब चॉइस ही नहीं होती, बिना चॉइस की हाइट मिलती है। दिल लाने की बात है जो दिल को लग जाता है। दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे है। छोटे को लंबी पसंद आ गई और लंबी को छोटा आ गया तो ठीक है, मौज करेंगे, अपने गुजारा करेंगे। किसी को जवाब मेरे जी क्वेश्चन पूछ लूं बत्रा जी से, एक छोटा सा क्वेश्चन। एक मिनट नहीं एक मिनट मेरे को थोड़ा सा बोलने दो। मेरे को भी थोड़ा सा बीच में मसाला डालना पड़ता है। एक बार गौरव जी भी लाइन पे हैं। गौरव जी आगे है, आपने अपना ऑडियो वीडियो तो सतीश जी तो नजर आ रहे हैं मुझे। नहीं गौरव जी ने अपना म्यूट किया। सतीश अग्रवाल जी टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, वो अपना मोबाइल में मैसेज काम कर रहे हैं। बंद कर सकते हैं यार। ओ यार, इको मीटिंग होती है थोड़ी, जितना कोई फॉर्मल डेकोरम नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो मजे ले लिया करो। वेजन आएगा, ऑन करके चला जाएगा। कोई फॉर्मेलिटी करना आयो क्या? दोस्तन मिलन आयो, दोस्तों नाल हंसी मजाक करो, हंसी मजाक करके सीखो और जाओ। चलो सर, ओके सर। नहीं एक मिनट एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना। एक मिनट। हाँ जी, गौरव जी इज आल्सो विद अस। गौरव जी कुछ यू वांट टू ऐड समथिंग? अरे सर नहीं, आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग। बत्रा सर बोल रहे थे, मैं आज चुपचाप सुन रहा था और मैंने कहा सुनील जी भी क्वेश्चन पूछेंगे, सो आई विल जस्ट कंटिन्यू लिसनिंग टुडे। गौरव जी ने जब से मूछें कटवाई है बोलना कम कर दिया। एक मिनट गौरव जी ये क्या कह रहे हैं?
सर मैं कुछ नहीं कह रहा, बत्रा सर मेरे गुरु हैं, जो वो कहे वो सब सही है। देख लो सर। गौरव जी पूछिए, छोटा सा क्वेश्चन है हाँ ये सर ना। बोलिए। हाँ करो विनय जी, सुनील ये जी। डिपार्टमेंट जो है ना, आईजीएसटी के जो रिफंड है ना, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ ड्यूटी, वो नहीं दे रहा, इसका क्या सोल्यूशन है? क्योंकि ये ना जो आईजीएसटी के अंदर, बीवी आपकी बात नहीं मान रही, इसका क्या नहीं नहीं सर, एक मिनट आपका सर, बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, इसका सर क्या मेरी एक बात सुन लो सर, मैं 1 मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये सिस्टम ड्रिवन है, विद पेमेंट ऑफ जो टैक्स है, एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं विद सिस्टम ड्रिवन है, तो इसके अंदर रिफंड ऑटोमेटिक है। हम आईजेड पे कंप्लेंट करते हैं तो वो ये कहते हैं आप शिपिंग वाले को बोलो, आप कस्टम वाले के पास जाओ, वो 50 तरह के सोल्यूशन दे देता है, लेकिन रिफंड नहीं देता। तो आप किसको अप्रोच करें? क्योंकि सिस्टम ड्रिवन है, किसी को ना नाम देते हैं ना कोई कहीं जगह बताते हैं किसको मिलने हैं। खन्ना साहब, आप बीवी को कहते हो मुझे बुधवार की रात को एक ड्रिंक लेने दो, साथ में नमकीन बना दिया करो, वो नहीं बनाती है। आप किसको कहोगे? साले को कहोगे, मदर इन लॉ को कहोगे, फादर इन लॉ को कहोगे, बेटे को कहोगे, नहीं मानती तो नहीं मानती। नहीं सर, खुद ही बना लेंगे। बस यही बात। तो सर क्या करें? आप जाके वहां बात करो, खुद जाओ, काम हो जाएगा। नहीं, किसके पास जाएं सर, वही तो कह रहा हूँ। अब रिफंड लेना है गौरव से, तो अशोक बत्रा के पास आके क्या करोगे? नहीं बट कोई नाम ही नहीं पता कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, पता ही नहीं इसका। क्योंकि जो एलयूटी का रिफंड है वो तो पता होता है कि किसके पास है, कहाँ कौन सी रेंज है, क्या है, सब पता होता है। भैया अंदर सर, इसके अंदर ना क्वेरी वो आइस गेट पे जाते हैं तो हमें जो एरर है वो 5 एरर्स होती है, 1 2 3 4 5 एरर्स होती है। तो वो जो एरर है सर निकालती है। अगर वो एरर सीएचए से सॉल्व होने तो सीएचए सॉल्व करेगा। अगर हमने कोई शिपिंग बिल में गलत डेट डाल दी तो वो हमें अपने आप नहीं सर, वो सारे जो इनवॉइसेज है ना सक्सेसफुली ट्रांसमिट टू आइस गेट, कोई एरर नहीं। एक काम करो, क्लाइंट को छोड़ छोड़ क्यों काम का टेंशन ले ली? आगे बाल आपके खत्म है और जो 2-4 बच्चे वो उड़ जाएंगे। बत्रा जी सोल्यूशन क्या हो सर? यार भाई तो मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन ये है कि अपने बाल बचाने हैं तो क्लाइंट को छोड़, क्या भैया तो अपने आप कर ले, मेरे बस का नहीं। तो क्लाइंट से तो हो सकता, तो हमारे पास क्यों आता जी? तभी तो मैं कह रहा हूँ ऐसे क्लाइंट मत लो ना जो बाल उड़ा दे। बाल तो सर वही है। लाइट साइड, चलो लाइटर साइड को देखिए, जो चीज सिस्टम ड्रिवन है वो सिस्टम ड्रिवन ही है। इट इज गिवन बाय द आइस गेट पोर्टल, आइस गेट में ही जाना पड़ेगा, वहीं से आपको बात करनी। तो सुनते ही नहीं सर, 6 महीने साल हो गया आज। सुनील सुनता तो आपका बेटा सुनता है क्या? आपका सुनील जी स्टेटस क्या दिखा रहा है? वो आपके जो लॉगिन पोर्टल जीएसटी की साइट में दिखा रहा है सारे इनवॉइसेस सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड टू आइस गेट, देयर इज नो मिस्टेक। और आइस गेट को चिट्ठी लिखते हैं तो वो कहता है जी आप शिपिंग बिल वाले को कांटेक्ट करो, आप कस्टम वाले को कांटेक्ट करो, आप ये अगर नहीं है तो गो फॉर अ रिट सर। जो बत्रा सर कहना चाह रहे हैं बार बार आपको, इफ देयर इज नो वे आउट, हाँ जी, देन यू हैव ओनली वन वे, एनफोर्स द राइट। ठीक है सर, ठीक। अब गौरव जी ने एडवोकेट एज एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्या बढ़िया सोल्यूशन दिया है। उनका नंबर है ना आपके पास गौरव जी का? सर वो तो मिल गौरव जी को अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है और कुछ गलत आपका नहीं सॉल्व हो रहा, दैट इज द ओनली वे आउट यू हैव देन। आप देखिए खन्ना साहब, अब जाके थप्पड़ तो मारेंगे नहीं उसको, लड़ेंगे, लीगली लड़ना है तो लीगली क्या है, आपको रिट जुडिशल जाना पड़ेगा। मतलब कांटेक्ट करने वाला आदमी कोई नहीं है ना, बस सीधी सी बात है, कहीं कोई भी नहीं। सर इसमें एक चीज आप और कर सकते हो, आप एक बार फ्लैगिंग चेक करा लो कि आपके एक्सपोर्टर को उन्होंने रिस्की एक्सपोर्टर तो मार्क नहीं करा है। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, वो चेक कर लिया। रेगुलर केस में कुछ हो ही नहीं सकता, ना रिस्की एक्सपोर्टर ना फ्लैग, कुछ नहीं, सिर्फ आपको आदमी चाहिए। नहीं सर, फिर तो अगर रिस्की एक्सपोर्टर नहीं है देन रिट इज द ओनली ऑप्शन। ठीक सर, ठीक, कंसेंसस हो गया। ठीक है जी सर। मैं कुछ कहना चाह रहा था, एक रिक्वेस्ट थी बत्रा साहब से। राजीव वाले जी, आई डोंट नो इफ इट्स रेलेवेंट, बट क्योंकि वो बात ऐसी निकली तो बात दूर तक जाएगी वाली बात है। संजीव जी ने बात बताई सर, हमारा भी पेमेंट एनआईआरसी में जनवरी से फंसा हुआ है सर, कैरियर काउंसलर्स का। पेमेंट भी नहीं कर रहे सर वो एनआईआरसी में सर, सीए इंस्टीट्यूट में वो कुछ कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, पेमेंट ही नहीं कर रहे सर। अब मेल्स लिख लिख के थक गए सर हम, सेक्रेटरी साहब को भी सबसे बात कर ली है, लेकिन देयर इज नो। हमारे यहाँ आपको पता होगा, वही बात है, किससे लड़े, अपनों से कैसे? मैं बता रहा हूँ राजीव जी बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक पास्ट प्रेसिडेंट है, उनका नाम है श्री वेद जैन। अच्छा सर। वो इस मीटिंग में आते हैं,
ठीक है सर। वो इसकी इंस्टीट्यूट की वर्किंग से भली भांति परिचित है और वो अभी भी है, अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, वो अलग बात है। तो आप उनसे बात करो, ही इज द राइट पर्सन टू आंसर दिस। सर फाइनेंशियल डायर नीड है सर, और 4 months हो गए हैं, जनवरी की पेमेंट है, बट नई कमेटी आई है, वो कह रहे हैं पीछे की कमेटी। सर एक बार प्रो हमारे इंस्टीट्यूट में पीछे का काम देखना शुरू कर देते हैं, पीछे की कमेटी ने क्या किया, आगे का काम के बजाय पीछे का देखना शुरू कर देते हैं। पीछे की कमेटी ने अपना किया, अब अगले जो काम आएगा वो पीछे का देखना शुरू कर देंगे। सो वी मूव 2 steps बैकवर्ड, 1 step बैकवर्ड, 2 step फॉरवर्ड, इस तरह से। सर आप ये जीएसटी एक्सपर्ट से क्यों कह रहे हैं? ये बात मैंने आपको कहा ना, कंसर्न पर्सन के पास। ठीक है सर, ठीक है। मामला पुलिस का। थैंक यू। एक मिनट राजीव जी, मेरी बात सुनिए। मामला चलान का, आप थानेदार को तंग कर रहे हो, एसएचओ को तंग, ट्रैफिक पुलिस वाले के पास जाओ। चलिए ठीक है। मैंने आपको बताया मिस्टर वेज जैन इज हियर, अगर वो नजर आते हैं तो। ठीक है सर, चलो जी मैं कनेक्ट कर लूँ। ठीक है, से बात करो। एक मिनट अगर गौरव जी कुछ आंसर है सर, एक मिनट में तो बता देंगे, या तरुण जी। एक क्वेरी थी सर। एक मिनट एक क्वेरी सर, एक मिनट गौरव जी, आप अवेलेबल हैं तो एक बार चैट में भी 2 क्वेरी हैं, एक बार देख लेना, उनको जवाब दे देना। नाउ ओवर टू नेक्स्ट क्वेरी। हाँ प्लीज गो अहेड। सर आपने केरला हाई कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस दिया था कि अगर हमने टैक्स ज्यादा पे कर रखा है और उसका रिफंड लगा दिया तो एडजस्ट करा लो डिमांड से। क्या ये तब भी एप्लीकेबल होगा अगर मैंने रिफंड एप्लीकेशन नहीं लगाई है बट मेरा टैक्स ज्यादा पेड है? ओके, तो आप सेल्फ एडजस्ट करना चाह रहे हो ना? वहाँ ये लिखा है कि यू हैव टू क्लेम ए रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू whom you have paid the tax wrongly. So you have paid, let us say, C and S or I. So if you have paid I wrongly, then you have to claim a refund from them. Refund तो I वाला ही देगा ना। तो उसमें सर अगर मैंने C and S से ज्यादा पे कर रखा है और डिपार्टमेंट ने स्क्रूटनी में या फिर ऑडिट में कोई डिमांड निकाल दी और मैंने 3B में C and S ज्यादा पे करा हुआ है, तो क्या मैं C and S की ही डिमांड ऑडिट डिमांड से पे करा सकता हूँ? क्या दोबारा बोले? अगर मैंने लेट्स से अपना 3B और R1 में 3B डिमांड ज्यादा पे करा रखी है, टैक्स ज्यादा पे करा रखा था, 3B में 120 था, R1 में 100 था, और वो 20 रुपए ज्यादा पेड है कैश के थ्रू। हाँ कैश के थ्रू, मतलब रिटर्न के थ्रू पेड है ज्यादा। रिटर्न में उनका क्वेश्चन है विनय जी का कि वेदर दैट एक्सेस अमाउंट इज थ्रू क्रेडिट और थ्रू कैश। वैसे थ्रू कैश है, अगर मतलब इसमें कोई डिफरेंस होगा तो आप बता देना, बट वैसे थ्रू कैश है। मैं माफी चाहूंगा, मैं 1 सेकंड अंकित जी आपको इंटरवीन कर रहा हूँ। एक फैक्ट के अंदर आपकी प्रॉब्लम है। कह रहे हैं आपने एक्सेस पे करा है, रिटर्न के अंदर एक्सेस पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। जो 3B है उसमें एक्सेस पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, आपके फैक्ट में गैप है। सो मैं नहीं सर, मतलब वो ऐसे है कि R1 और बुक्स मेरी मैच है, 3B में वो वहां पे एक जगह पे ज्यादा टैक्स पे हो गया या सेल्स ज्यादा रिपोर्ट हो गई। नहीं एडमिटेड लायबिलिटी पे होती है 3B से। इसका मतलब आउटपुट टैक्स, आउटपुट ज्यादा दिखा रखा आपने। एक सेकंड, आपने जो आउटपुट टैक्स पेबल दिखाया है केवल आप वही पे कर सकते हैं, उससे 2 रुपए ऊपर नहीं पे कर सकते। सर ये 18-19 की बात है। अगर आपने उसमें गलती कर दी है आपके एडमिटेड टैक्स में, then you will have to file a refund application. You cannot suo moto update that. मतलब वही होगा कि जैसे 18-19 3B में तो हम ज्यादा पे कर सकते थे और उसने कर दिया, अब 18-19 का मेरा ऑडिट हुआ और उसने मेरी नहीं अंकित जी, एक मिनट, बाकी तो एक्सपर्ट यहाँ पे हैं, सब्जेक्ट टू करेक्शन। आपने 18-19 में 3B में आउटपुट लायबिलिटी आपकी ज्यादा हो गई, वो आपने डिस्चार्ज कर दी कैश ऑफ द क्रेडिट से, फाइन, जैसे भी किया आपने। अब आपको लगता है कि 18-19 में वो लायबिलिटीज आपकी ज्यादा हो गई, इफेक्टिवली 100 रुपए आपने पे किए थे, होने थे 80 रुपए, करेक्ट? हाँ, यस। तो अब आप कह रहे हैं कि 20 रुपए मेरे अभी कुछ ऑडिट में अगर कोई आई है तो वो 20 उसके साथ में ऑफसेट हो जाएंगे। yes. गौरव जी ये कह रहे हैं कि 20 रुपए का आपको रिफंड अप्लाई करना पड़ेगा, वो आप वहां पे ऑफसेट का नहीं है। ऑडिट में अगर कोई आपकी डिमांड आती है तो वो आपकी कैश पेमेंट के थ्रू ही होगी। अगर यहाँ कैश बैलेंस आपके पास अवेलेबल है कैश रजिस्टर में, उसके थ्रू पे होगी, सब्जेक्ट टू करेक्शन बाय अशोक बत्रा जी और गौरव गुप्ता जी। आंसर इज करेक्ट। यू कैन नॉट टेक अ डबल पोजीशन कि भाई ये मेरा आउटपुट टैक्स था एक वक्त मैंने डिक्लेयर करा एंड देन स्यू मोटो मैंने कह दिया नहीं ये मेरा एक्सेस टैक्स है। इफ यू आर सेइंग ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है 9 वगैरह में भी कि वो एक्सेसली पेड है बाय मिस्टेक। अंकित जी आई अंडरस्टैंड इफ दैट इज देयर, बट देन 3B इज आल्सो योर डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट अ डिमांड रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। सो आपने अगर अपनी कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन दी है then it is your rightful duty to file the refund application, not choose what suits you.
ठीक है अंकित जी, इसको आप दूसरे एंगल से देखिए. Whenever you pay any excess tax, so there are two options. Either you have to claim a refund or self-adjustment. So in GST law, self-adjustment is permissible only in a very limited situations. Obviously, in these kind of situation, as Gaurav has rightly said, you have to file a refund application. सर दो गौरव जी आपने देखे हैं कि 2-3 क्वेरी हैं. मैंने सब रिप्लाई विनय जी कर दिए. अच्छा, उसी पे कर दिया है, चैट बॉक्स पे कर दिया सर. अच्छा, थोड़ा सा बोल भी दो, बाकी भी देख लेंगे, सारे ना देख पाए. देखिए, दूसरा मैं बस अभी टाइप ही कर रहा था. अगर कोई और क्वेरी है तो इतनी देर को क्लोज कर लेते हैं, फिर मैं अशोक जी, सर अपने एक सबसे पहला एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस दिया था कि अगर हमने प्रोटेस्ट में ड्यूटी पे करी है तो वी कैन गो टू हाई कोर्ट, कि उन्होंने रात को 1 बजे हमसे पे कराया और शो कॉज नहीं आया तो हमें पैसे वो वापस हो जाएंगे. अब सर जजमेंट का कोई रेफरेंस आप दे सकते हैं? मेरा केस ऐसा चल ही रहा है. पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का था वो सर. मेरे ख्याल से मैंने आपको अभी जो दिया है वो पंजाब हरियाणा, बहुत सारी जजमेंट है इसमें अवेलेबल. लास्ट मंथ ही आई है. आज वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का था. हाँ, आज वाला जो केस मैंने बोला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का. अगर सर साइटेशन मिल जाए फिर मैं उसको आगे पीछे रेफरेंस करके और निकालूंगा. आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको साइटेशन भेज. ठीक है, मेरे वो दूसरी डायरी में लिखी होगी, डायरी नहीं मेरे पास. ठीक है. नो गौरव जी क्वेरी ले रहे हो? अनम्यूट. सर कैन आई टेक लीव? 2 मिनट रुक जाओ. विनय जी लास्ट वेरी प्लीज विद हम्बल रिक्वेस्ट. मैं एक करके बत्रा सर के सामने दोनों क्वेरी. समोसे आने वाले हैं. आपने तो वीडियो ऑफ किया हुआ, समोसे कहां से आएंगे? तो मैं समोसे ही तो लेने गया हुआ. अच्छा, पता नहीं कहाँ पे लेने गए हैं. हाँ गौरव जी प्लीज. Sir, very quickly, whether GST is applicable on membership fee, annual subscription collected by charitable organization societies from its member. Now the very straight question is section 7(1)AA, which was introduced last year. Is it making these particular kind of charges taxable? So my humble answer is, if you're not challenging the wires of this particular section, it is taxable. And when I'm saying, are you challenging the wires? I'm very clear, because the word which has been used there is consideration. While in case of membership, if you read into the mutuality of the organization, the transactions, then in that particular case, the word is not consideration but contribution. तो कंट्रीब्यूशन और कंसिडरेशन के बीच के फर्क को अगर आप ध्यान रखेंगे तो उस हिसाब से आपको आपकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड करनी चाहिए. सो आउटराइटली दी without any litigation, the answer would be yes. But if a person opts for a litigation, then the answer will be no, because then you have to challenge the amount or the contribution should not be considered as a consideration under 7(1)AA. सर बत्रा सर, एनीथिंग? मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा. आपने बिल्कुल ठीक बोला है. मेरा ये कहना है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन करती क्या है. दो यू मे कॉल इट ए मेंबरशिप और एनुअल सब्सक्रिप्शन, इट मे बी इन द नेचर ऑफ डोनेशन आल्सो. आई डोंट नो. You have to know the facts. What does that society does? Whether any facility is given to the members in lieu of that amount. Is there any correlation between the services provided and the amount of membership? Then what Gaurav has said is absolutely correct. But in case you are just calling it a membership fees, though it is a yearly contribution from your side, and the charitable organization is engaged in the activities which cannot fall under the definition of supply or maybe exempted thing, then it is a different issue altogether. You understand little bit more 2 words. One is the contribution, other is the consideration. That is what I think. He is saying membership fees, annual subscription. Now, I know certain organizations जहां अब वो 10,000 रुपए हर मेंबर हर साल देता है. But then those money is being spent only for the activities which are being covered under charitable activities. In that case, it is not a consideration, though it may be called a membership, because you are contributing for a social cause, and that social cause is not subject to tax under GST. So no GST at all. So we need to know more facts about this, because these kind of queries, which are very controversial, have to be examined very thoroughly with the reference to the facts. सिर्फ मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ. बाकी जो गौरव जी ने कहा है, fully agree with him 100%.
नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव जी, इसमें एक और रह गया बस आपका। सर ये रिस्की एक्सपोर्टर्स के ऊपर है। इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी देयर इज अलर्ट ऑफ रिस्की सप्लायर। वेदर रिफंड कैन बी अवेलेबल। कौन सा है सर वो? Whether refund can be available of unutilized ITC in case of the tax rate on the input service being higher than the rate of tax on the output supply of goods. देखिए सर, सर्विस का रेट तो मोस्टली ज्यादा होगा। जब 12% के आप गुड्स बेच रहे हैं, वहाँ सर्विसेज तो आप जो ले रहे हैं 18% ही है। आईटीसी का रिफंड सिर्फ दो ही सिचुएशन मिलता है। नंबर 1, इट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई। नंबर 2, इट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। Inverted duty structure में the rate of input is compared with the rate of output, right, and not the input service. Correct. हाँ जी, last point. In case of payment of IGST, there is a alert of risky supplier, registration cancelled from backdate by, but he has filed both 1 and 3B. So can we claim ITC? देखिए सर, जब आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसल्ड है और आपको रिटर्न नहीं फाइल करनी, तो आईटीसी कहाँ लेंगे? इसमें तो और बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। You have to file an application for revocation of cancellation, and then you have to go for